also I will tell you are not having their proper admission number, they will not be an roll number, class and section, they will not be admitted in the class. You have to go to the SNAP homework and you have to fill up all these things over there. Okay? Then only you will be able to join the class. And for that only I wait for 2-3 minutes that you all join first, and I will see that all of you are with proper your identification. Then only I will start the class. And in the meantime, you all start saying, ma'am, you have muted, you have muted. I have not muted. I was just allowing all the students to join. Okay. So today is which chapter we have to start? Do you know which chapter 3. Chapter 3. And all of you are knowing the portion of your half yearly exam? Campus. Yes, ma'am. में भी डाल दिए थे, स्नैप में भी डाल दिए थे. अभी लिखना है या बुक में टिक करना है तो वो भी टिक कर लीजिए आप लोग. चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5, 4 भी हम पढ़ाए हैं लेकिन 4 नहीं आ रहा है, 4 ओमिटेड है नेक्स्ट टर्म के लिए. चैप्टर 5, चैप्टर 7, chapter 10, chapter 11, chapter 12 and chapter 13. So we are on the revision of each and every chapter. Come to the third chapter. Children, third chapter is a very you can say important chapter. Why I am telling important? Because it is related to your chapters in 9th standard, and all the chapters are there, but this is important to understand because you are learning this formulas and how to write the symbols and valencies. These all things you are learning for the first time. That is why I am telling you. Okay? Then after that, we will, first of all, we will have this. 1 minute, just a second. So, first of all, yesterday I discussed some of the important terms over here. And what was the term? The term was that we have studied about matter in class 6. That was divided into solid, liquid, and gaseous state. Here we are going to see that the materials or the matter, any matter which is made up of a particular type of particles, and the smallest particle with which it is made is known as the atom. Clear? Then we can divide the pure substance, pure atom, anything. We can divide it into 3 categories. First of all, element, second is compound, and third is mixture. Why we are going to study element, compound, and mixture? Because these pure substances or atoms or molecules which combine to form a new substance that is why we have to know about these terms. So what is element? Element is again a pure substance which is made up of atom of the same kind. Like yesterday I told you, if you take sugar, half kg or 250 grams of sugar, you see all the particles are in the similar form and they are composed of the same particle, that is known as the atom of that particle, of that substance. Then whole component, jitna bhi aap loge, that is made up of same type of substance, and that is why it is named as same type of atom bhi bol sakte ho, that is why it is named as element. आपको सिर्फ सिंगल कंपोनेंट होगा, सारा पार्टिकल्स एक तरह का होगा एलिमेंट, that will be the atom in the atom form. Then, for example, आयरन एलिमेंट लिया हुआ है. आयरन को एलिमेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि वो क्या किस चीज से बना हुआ है? All the particles, if you break it into very fine powder also, then if you will test, then it will have the property of that iron. ठीक है?
उसी तरह एक छोटा क्रिस्टल भी आप लेते हो शुगर का, तो वो क्या होता है, आप अगर उसको टेस्ट करते हो तो देखते होगे कि वो क्या होता है, स्वीट टेस्ट करता है. इन द सेम वे इफ अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉल्ट इज टेकन, then that is tasting as sour or salty. Then that is the component that different components are not there. Only one component is there. That is why it is known as pure substance and it is defined as element. Then what about compound? Compound is also a pure substance, but it is made up of molecules, atoms, and they are also in the fixed ratio. जैसे सपोज कर लो हम लोग कोई केमिकल कंपाउंड, व्हाई डू वी से केमिकल कंपाउंड, बिकॉज द एटम्स ओवर देयर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी, नॉट वन. वन रहेगा तो वो एलिमेंट होगा. कंपाउंड जब बन जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, मोर देन टू एलिमेंट्स उसमें रहेंगे. तो एटम उसका अलग अलग होगा और वो क्या होगा, एक फिक्स्ड रेशियो में होगा. जैसे सपोज कर लो इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ वाटर, वाटर का एग्जांपल लेते हैं. वाटर का क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, किसी को याद है? H2O. H2O. I think that other have joined the class from yesterday. I am watching. No other students are participating. सब लोग आप लोग पार्टिसिपेट करो क्लास में. यू हैव टू टेल और आंसर सो दैट आई कैन कम टू नो दैट यू आर keeping attention on the class. Then here H2O. H2O means what? It is 2 into 1, 2:1 in ratio. मतलब दो पार्टिकल्स किसका है, दो एटम आपका हाइड्रोजन का है Hydrogen. और एक आइटम ऑक्सीजन का है. उसी तरह में बहुत सारे कॉम्पाउंड्स ले सकते हैं जिसका एग्जांपल हम लोग के पास है. एंड दैट इज योर सपोज अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का कॉम्पोजिशन या सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम भी 1 होता है, क्लोरीन भी 1 होता है, क्लोराइड भी 1 होता है. तो इन दैट वे वी कैन से, अब जैसे कार्बोहाइड्रेट लोगे तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, ग्लूकोज, जिसमें कि 6 कार्बन एटम रहता है, 12 हाइड्रोजन एटम होता है एंड O आपका 6 होता है. तो 6:12:6. मतलब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कंपाउंड में दो ही रहे आपका एलिमेंट, दो ही एलिमेंट नहीं रह सकता है, दो से ज्यादा भी रह सकता है. But it will all be in a fixed ratio, fixed proportion. Then after that we were talking about mixture. We will talk about mixture. What is this mixture? Mixture will be made up of more than 2 components, substance, but it will not be in fixed ratio. लेकिन वो fixed ratio से नहीं होगा. आप ये खाने में भी एक हम लोग खाते हैं मिक्सचर, तो आप देखते होंगे कि उसमें कोई भी कंपोनेंट एक फिक्स्ड रेशियो में नहीं रहता है. दैट इज जस्ट डन बाय एजम्पशन. कुछ मतलब एक अंदाज जिसको बोलते हो, उससे उसको मिक्स कर दिया जाता है. तो इन दैट वे हियर आल्सो इन केमिस्ट्री व्हाट वी विल टॉक दैट मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 or more components but they are not in fixed ratio. अब ये तीनों का आप लोग को डिफरेंशिएशन समझ में आया? Have you understood the differentiation between element, compound and mixture? Yeah, anybody has some question? Yes, ma'am. किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें समझने में? No, ma'am. Others? Compound, mixture. Pallavi Kumari, have you understood? Pallavi Kumari, have you understood? बोलो. 7 की पल्लवी.
let us move forward if you don't have any problem. Okay, now let's come to the next topic, that is chemical symbol. This chemical symbol, you have to learn the symbol of all the elements which is given. And I think, I suppose that all of you are knowing the symbol of all the elements which are mentioned in your book. Book के अलावा अभी आपको बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है. You have to learn it from that much is enough. अभी आपको जो भी कंपाउंड्स बनाने या केमिकल फॉर्मूला लिखने आएगा वो सब बुक के अंदर का ही आएगा, बाहर से नहीं है. ठीक है? So you learn it from the book. And children, I request you, those who are joining late, please don't join late because it just wastes the time. Then, can anybody tell me the formula of silver? Sorry, symbol of silver? Not formula. Ag. Ag. Okay. ठीक है? Then, symbol of potassium? K. P. K. 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 Yes. K. You होके join करो, then you have Iron? Fe. Fe. Using these symbols, ये symbols हम लोग use करके हम लोग क्या कर सकते हैं? We can write the chemical formula. अब ये Formula. हम लोग formula लिख सकते हैं. तो chemical formula को हम define कैसे करेंगे? The chemical formula of a substance is based on the composition of that substance. Composition of that substance. Number of atoms of each kind present in that substance. Now, अब ये क्या करता है? केमिकल फॉर्मूला हमको ये दिखाता है कि कितना उसमें Composition of that substance. कितना कंपोनेंट है उसमें, उस फॉर्मूला में, और उसका रेशियो क्या है, ये हमको केमिकल फॉर्मूला के थ्रू पता चलता है. ठीक है? देन उसका केमिकल फॉर्मूला हम लोग लिख कैसे कर सकते हैं? लिखने के लिए क्या है, पहले हम लोग उसका, जैसे आप सिंबल अभी एलिमेंट का लर्न किए, उसी तरह से आपको सिंबल लर्न करना है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स चार्जेस. आयंस कहते हैं चार्जेस को. ये आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया जाएगा. ये चार्जेस डेवलप होता है जो आउटर मोस्ट शेल में कितना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसके हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप करता है. ये जो सिंबल्स आपको आयंस का दिया है, क्लियर? फिर से बताएं. मैम प्लीज म्यूट ऑन. हाँ, आयंस उसको कहते हैं जब वैलेंसी आप लोग पढ़िएगा क्लास 9th में, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है और वैलेंसी शेल क्या होता है. ये शेल्स होता है जब एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे ना आगे, अभी आपको नहीं समझ में आएगा कोई भी बात, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो केवल. एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप पढ़ोगे क्लास 9th में, तो आपको बताया जाएगा कोई भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उसके हिसाब से उसमें कितना शेल में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. तो लास्ट वाला शेल होगा, लास्ट वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है वो उसका चार्ज हो जाता है, वो उसको आयंस में बदल देता है. तो यहाँ पर आपको ये कैलकुलेशन दिया हुआ है, ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है. तो क्या करना है? यू हैव टू मेमोराइज इट. आपको उस चार्जेस के साथ, और अगर मान लो हम बोलते हैं सोडियम, तो +1, तो इसका मतलब उसका वैलेंसी कितना हुआ? 1. ठीक है? 1, 2 और 3 पर वैरी करता है ज्यादातर, मोस्टली. तो 1, 2, 3 में जब वैरी करेगा तो आपको, क्योंकि ये जो सब शेल है what problem you are having? मैम प्लीज सबको अनम्यूट कर दीजिए.
मैम हम लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं। कौन है? नहीं, अभी अभी मैम सबको mute कीजिए। जब डिस्कशन टाइम होगा तब हम अनम्यूट करेंगे, बिकॉज यू आर मेक सो मच ऑफ नॉइज। ठीक है, ओके मैम। अभी आप लोग ये समझो कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में होता है, जब आप लोग 9th में जाओगे तो Mn करके जो सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आप लोग पढ़ोगे। गुड मॉर्निंग मैम। आपको एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से होता है, और तब वो एटॉमिक नंबर पढ़ोगे, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे, तब आपको ये बात ज्यादा समझ में आएगी। लेकिन अभी आपको क्या करना है, प्लीज अनम्यूट अस। ध्यान करना है कि लास्ट उसका वैलेंसी कितना है। तो कैसे आप देखोगे, और उसमें होता है पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के साथ आपका सिंबल्स यहाँ आयंस का दिया हुआ, उसको आपको लेना है। ठीक है, तो कैल्शियम में 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इसको हम लोग 2 पॉजिटिव लिखते हैं। एल्युमिनियम में 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव लिखते हैं। ये आपको जानना बहुत जरूरी है बिफोर गोइंग टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस केमिकल फॉर्मूला लिखने के पहले ये जानना जरूरी है, and which one are the positive ions and which one are the negative ions। ये आपको बुक में, और don't worry that you don't know ये आगे का कंपाउंड्स के बारे में आप पीरियोडिक टेबल देखने लगते हो, तो ये देखने लगते हो, ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। अभी आपको प्राइमरी स्टेज में जो बुक में दिया हुआ है उतना ही याद करना और उतना ही समझना है। ज्यादा हड़बड़ाओगे तो फिर ना यहाँ समझ पाओगे ना आगे समझ पाओगे। ठीक है, तो आप सिंबल्स, आपका आयंस का कितना दिया हुआ है? 9 सिंबल्स दिया हुआ है, और पॉजिटिव आयन का एंड सिंबल्स ऑफ नेगेटिव आयन, बस उतना लर्न कर लेना है आपको। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइट हैव लर्नड आल्सो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लर्न किए भी हुए होंगे। यस और नो? Yes, ma'am. जो लर्न किए हुए वेल एंड गुड। अब नाउ व्हाट, हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है? तो फर्स्ट रूल है दैट द पॉजिटिव आयन का सिंबल और नेगेटिव आयन के सिंबल को हम लोग अलग अलग थोड़ा सा गैप में लिखते हैं। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। पेज नंबर 35 में निकालो। सिंबल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर रिटन, देयर चार्ज इज रिटन, उसका चार्ज भी ऊपर लिखा जाता है। और उसके बाद पॉजिटिव आयन कॉमन फैक्टर्स, अगर मान लो दोनों में +1+1 है तो कोई बात नहीं, वो कॉमन फैक्टर हो गया, तो क्रिस क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि 1 कैंसिल हो गया। 2 अगर दोनों में है, पॉजिटिव में भी है नेगेटिव में भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर एक में +1 है, दूसरे में +2 है, -2 है, तो क्या करेंगे, इसको थर्ड स्टेप में क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का मतलब आयन का चार्ज है उसको नेगेटिव आयन के पास लिखेंगे, और जो नेगेटिव आयन का चार्ज है वो पॉजिटिव आयन के पास लिखेंगे। ठीक है, Positive ion. लिसन चिल्ड्रन, अगर संदीप आपको दिखेगा या आपको उससे कांटेक्ट होता है तो उसको बोलिएगा he is coming again and again but he is not having a proper admission number and class roll number। 7B का है I think he, तो आप उसको इन्फॉर्म करिएगा, because he yesterday also in the group I have written this that without your admission number you will not allowed in the class। क्लास में बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। एक ये अर्नव राज सिंह, आपका भी एडमिशन नंबर नहीं है, सो आई एम रिमूविंग यू। एंड डोंट कम इन बिटवीन, दिस इज नॉट अलाउड। ये हो ही नहीं सकता है अब आपको, क्योंकि दिस यू हैव टू बिकम सीरियस अबाउट इट, बिकॉज आपका टर्मिनल एग्जाम इसी बेसिस पर होगा, इसी टर्मिनल जो हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है आपका, इसी बेसिस पर होगा। ठीक है, कि आपका पूरा स्नैप पर आपका पूरा डॉक्यूमेंट फिल्ड अप है। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट एक चीज आपको और अभी हम बीच में बता देते हैं कि जो ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न है हाफ ईयरली का,
उसमें 10 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव होगा, दैट इज मल्टीपल चॉइस। ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस, टिक करना होगा आपको आंसर, 10 मार्क्स का। 40 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। उसके बाद 2 मार्क्स का आपको 10 क्वेश्चन होगा, और वो आपको शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, आपको डेफिनेशन होगा या फिर 1-2 सेंटेंस का डिफरेंशिएशन होगा, या गिव रीजन टाइप का कुछ क्वेश्चन होगा जो 1 और 2 सेंटेंसेस में ही आंसर हो सकता है। वो आपको लॉन्ग आंसर होगा, दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स ईच। जो आपका लॉन्ग आंसर होगा उसको इलैबोरेट लिखना है, जैसा आपको आंसर कॉपी में लिखवाया गया है। तो आपका क्वेश्चन भी उसी हिसाब से होगा कि उसका आंसर आप 50 to 70 वर्ड्स में दे दें। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? Until now you all are joining the class. This is very bad. ये बहुत गलत बात है कि आप लोग इतने लेट तक ज्वाइन करते हैं, फिर इससे क्लास डिस्टर्ब होता है। Then after that we will talk about we were talking about the crisscross of the this charges. Open to page number 36 of your book. 36 का book का page number निकालो, all of you. Are you ready with it? Yes, ma'am. सब लोग बुक का पेज 36 निकालें। वहां पर आपको एग्जाम्पल, वैसे हम आपको ये चैप्टर थ्रू माय ओन एग्जाम्पल्स आल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस क्लास, लेकिन एक क्विक ग्लांस हम लोग लेंगे कि फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है। अब देखो यहाँ पर किस चीज का, फर्स्ट एग्जाम्पल में कौन सा फॉर्मूला लिखना है, किसका फॉर्मूला लिखना है? रीड आउट दैट एग्जाम्पल। Sodium and oxide. Sodium oxide. ऑक्साइड नहीं, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है? अब ये एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, तो अब इसको पढ़ेंगे तो एक साथ, लेकिन इसको पहले लिखना कैसे है? सेपरेट वे में। पहले सोडियम का, क्योंकि पॉजिटिव को हमेशा फ्रंट में रखते हैं, तो पॉजिटिव वाले आयन को लिखेंगे, फिर निगेटिव आयन को लिखेंगे। तो पॉजिटिव आयन में सोडियम का वैलेंसी कितना है? +1। वैलेंसी का मतलब चार्ज, जो चार्ज आयन पर तुम लोग पढ़ रहे हो, और O का चार्ज कितना है? 2-। क्लियर? ये तो हम लोग लिख लिए। सेकेंड स्टेप में उसका चार्ज भी लिख लिए। थर्ड स्टेप क्या बताए थे? Criss-cross. क्रॉस। तो क्रिस क्रॉस आपका बहुत क्लियरली आपके बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। क्रिस क्रॉस कहाँ पर शो कर रहा है? उसके चार्ज पर, उसके सिंबल पे नहीं, उसके चार्ज पर। तो आप देखो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, N ये कैसे लिखा हुआ था? N A +1 और O 2-, ऐसे लिखा हुआ था। ये क्या लिखा हुआ है? जब ये फॉर्मूला बनाने के बाद क्या लिखा हुआ है? Na2O1। अब नेक्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि वहां जब चार्ज लिखते थे तो उसका पॉजिटिव और निगेटिव लिखते थे, लेकिन जब फॉर्मूला लिखेंगे तो वो एक तो ऊपर नहीं लिखाएगा और वो नीचे लिखाएगा सिंबल पे, उसमें चार्ज नहीं लिखाएगा। सिंबल में वो नंबर लिखाएगा लेकिन उसका चार्ज नहीं लिखाएगा जब वो क्या बन गया? जब वो फॉर्मूला बन गया सोडियम ऑक्साइड, ठीक है? तो वो 2 कहाँ चला गया? Na पर, ऑक्सीजन का 2 Na पर चला गया, और सोडियम का 1 ऑक्सीजन पे आ गया। So this is the method of crisscrossing of the different, you can say, symbols, different components of a different type of formula when we write a different type of chemical. आपके पास एक और एग्जाम्पल है, एल्युमिनियम सल्फेट। नाउ नहीं याद है तो देखोगे कि सल्फेट आपको एक पूरा फॉर्मूला के फॉर्म में दिया हुआ है, दैट इज SO4 2-। तो वो सल्फेट का सिंबल हो गया विथ वैलेंसी, ठीक है? कहीं कहीं आपको 2 लेटर्स दिया हुआ है सिंबल में, तो सिंबल में 2 लेटर्स भी हो सकता है विथ इट्स चार्ज। तो शोइंग, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हम सल्फेट बना रहे थे
तो सल्फेट का क्रिस क्रॉस करके एस का इधर चार्जेस। अब उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको what you have to learn that the sulfate formula is SO4 2-। तो अगर आप यहाँ पर जब एल्युमिनियम सल्फेट लिखने लगोगे तो एल्युमिनियम सल्फेट में एल्युमिनियम का चार्ज कितना है 3 पॉजिटिव और सल्फेट का चार्ज कितना है 2-। आप चिल्ड्रन देख रहे होगे, माइनस। हाँ बुक में आप देख रहे होगे कि सल्फेट को ब्रैकेट में लिखा हुआ है। क्यों ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जरा इसका रीजन बताओ। हम समझा चुके थे पिछले क्लास में, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग द आंसर। सल्फेट को हम ब्रैकेट में क्यों लिखे हुए हैं, क्यों बुक में आपके लिखा हुआ है ब्रैकेट में, बताओ एनीबॉडी? फॉरगॉटन एवरीथिंग? देन लिसन द आंसर। एल्युमिनियम में से चार्ज ट्रांसफर होगा आपको कहा, सल्फेट पे ट्रांसफर होगा, होगा ना, होगा या नहीं होगा, बोलो यस और नो। एल्युमिनियम में से आपको ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? मैम होगा। यस मैम। होगा। तो आपको दो ये न्यूमेरिकल वैल्यू को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? For that you have to make sure that the sulfate which is having 4 in its number in the symbol, उसको आपको ब्रैकेट में रखकर ठीक है, एक साइड। अब आप इस क्रॉस जो करोगे, जो एल्युमिनियम में से 3 पॉजिटिव चार्ज जाएगा, that will be written as sulfate। अब देखो इसका जब क्रिस क्रॉस हुआ तो एल्युमिनियम का जो चार्ज था वो कहाँ चला गया? Where has it gone? It has gone to sulfate। लेकिन वो उसके ब्रैकेट के बाहर जाएगा, उसके ब्रैकेट के बाहर जाएगा। Why? क्योंकि वही उसका डिसाइड करेगा कि अलग अलग उसके एलिमेंट्स का कितना चार्ज है, कितना अलग अलग, जैसे सल्फर पर कितना नंबर है, ऑक्सीजन पर कितना नंबर है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे फॉर्मूलाज लिखने में, तो आप जब हम बैलेंसिंग बताएंगे तब उसमें आपको इसका यूटिलिटी समझ में आएगा। नहीं समझाएंगे तो समझ जाओगे। अभिनय कुमार, आर यू अटेंटिव? अभिनय 7A34 रोल नंबर 10। Two charge -2 charge that will go to aluminum. So formula क्या बन जाएगा? Al2SO4। इसको कैसे पढ़ेंगे? Al2SO4 whole 3। और ये ध्यान रखना कि जो चार्ज किसी भी कंपोनेंट पर रहता है, वो जब हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं तो वो चार्ज कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, वो चार्ज और हमेशा वो हट जाता है। Still the students are, अभी भी आप लोग आ रहे हो क्लास ज्वाइन कर। ओके, अब हम लोग को कौन कौन सी बात याद रखनी है? फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला? कोई एक आदमी बोलो। Symbols of positive and negative are written, and their charges Symbols written on the top right corner of the symbol. ions are written and their charge is written on top right corner of the symbol. मैं बोल रही हूँ कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा ये आप बताइए किसी भी केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए। फर्स्ट स्टेप यू कैन से इफ यू वांट टू। अगर आप बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। अनन्या, एनी अदर?
Ananya, what is the first step of writing a chemical formula? Ananya, go. Can you tell? Omkar. इसका मतलब हम इतने दिन पढ़ाए, आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया? रिस्पॉन्स करो। What did I tell just now? अभी हम क्या बोले आप लोगों को? जब भी कोई केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो पहले हमको उसका सिंबल्स लिखना होगा। सिंबल्स कोई भी सिंबल तो तुम लोग लर्न करते हो ना, ये हो अभी तक। Why are you all so blank today? Sarika, can you hear me? Sarika नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। अभिषेक, Ma'am, can I answer? ऋषभ, हाँ, yes, you can answer. बोलो। To write the formula, the first step of writing the formula of chemical. So to write the formula, we first write the symbol for symbol along with their charges. Yes. तो वो फर्स्ट स्टेप नहीं होगा, वो तुम दो स्टेप बोल दिया। पहले we will write the symbols and the second step is we will write the charges. Third step is we will crisscross the charges. Crisscrossed. Third step is we will Third step is- crisscross the charges and then we will finally write the formula. ठीक है? अब देखो, suppose Okay, ma'am. फिर से ले रहे हैं जो आपके बुक का ही है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बोलो, सिंबल बोलो पहले। Ma'am, can I? Ca2 plus. Ca2 positive. Ca2 plus Ca2 plus or CO3? नहीं, Ca2 plus. आपको हम अभी बता रहे हैं ना कि स्टेप वाइज आप लोग चलिए। कैल्शियम कार्बोनेट, तो पहला स्टेप कैल्शियम Ca एंड कार्बोनेट CO3, ये लिखेंगे हम लोग, है ना? इसी तो अब दोनों पर वैलेंसी देखेंगे, दोनों पर कितना चार्ज। तो कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव, yes ma'am 2 positive. कार्बोनेट positive 2 पॉजिटिव, 2 negative 2 नेगेटिव। यस, लेकिन इसको हम लोग कार्बोनेट का सिंबल क्या है? negative इसको ब्रैकेट में रखो। negative हाँ, तो आपको बता चुके हैं कि जब हम चार्जेस क्रिस क्रॉस करते हैं तो उसका वी वैल्यू वहां पर आ जाता है, इसलिए इसको पहले हम लोग सेफ साइड कर लेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बोनेट को ब्रैकेट उसमें एक डिजिटल नंबर क्रिस क्रॉस इसमें करने की जरूरत है या दोनों कैंसिल हो जाएगा? मैम कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा पॉजिटिव है एंड 2 नेगेटिव, क्या बनेगा फॉर्मूला? CO3. SO4 CaCO3 यस, वेरी गुड। CaCO3 SO4 कहाँ कौन बोल रहा है? SO4 कहाँ से आ गया? SO4 है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट हम बोल रहे हैं, तो कार्बोनेट CO3 होता है, ठीक है? जब सल्फेट होगा